So Bismillahirrahmanirrahim, and we are proceeding for our the next lecture in this SBL course, and I'm going to work on a little recap. So organization and SBL both are not only correlated, but actually they are complementary in this subject. What I mean to say, organization or the strategic business leader course, they are not only correlated, I'm saying they are complementary to understand what this course actually is. So SBL को समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को समझना और फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस को समझना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस को समझना, और फिर इसके साथ एक और चीज ऐड कर रहा हूं, एंड दैट एडेड थिंग दैट आई एम गोइंग टू वर्क ऑन, दैट इज नोन एज द lead of the organization, the lead's role in the organization. ये तीन चीजें आपकी SBL के साथ इस तरह से हैं as they are the complementary products. For an example, I'm repeating again. If we talk about the SBL course, I'm saying कि आपको SBL को समझने के लिए चार चीजों को अटैच करना होगा. One SBL, second one is the organization, third one is the organizational operation, and number 4 is the lead's role in organization. Means organization के head का क्या role है? If somebody wants to pass SBL in first attempt, उसको as a student नहीं पढ़ना है SBL के. He has to study SBL as an organization's lead, means organization के head के तौर पे, entrepreneur के तौर पे, एक बिजनेसमैन के तौर पर उसको पढ़ना है. अगर एक बिजनेसमैन की अप्रोच डेवलप कर सकता है तो ही कैन पास SBL इवन विदाउट स्टडिंग इवन अ सिंगल पेपर ऑफ अ बुक. सो SBL में मैं बोल रहा हूं कि चार चीजें कंप्लीमेंट्री हैं. एक SBL का कोर्स, नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, एंड नंबर 4 द लीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इफ you make a bunch of these all 4 things, SBL will be in your right hand to pass inshallah, and your pass rate will be inshallah. In every class I had 100%, and this class it will be 100% as well. So अपने आप को थोड़ा सा आउटरीच कर बाहर निकलना होगा अपने करंट होल ऑफ स्टूडेंट से. And you would have been thinking, or you would think that rather you should think that you are not a student, rather you are a business manager, you are a businessman by yourself. When you will be thinking yourself as a businessman, तो फिर ही SBL का कोर्स जो है वो ऐसे समझ आएगा जैसा एग्जामिनर हमसे चाहता है कि हम इसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस करें. So I'm going to start with the word organization, what it stands for. Organization is a group. It is a group of individuals. It's a group of individuals who work in a specific structure, of rules. They work in a specific structure of policies, and they work in a specific structure of regulations. What is the difference between them? Policy is known as a general guideline. It is not important for context of exam, but for the simple understandability, general knowledge के लिए जरूरी है. So policy is a general guideline, and when we make a guideline compulsory on all, that turns into a rule. I am repeating again. अगर हम बात करते हैं जनरल गाइडलाइन की बात करते हैं तो जनरल गाइडलाइन इज नोन एज अ पॉलिसी. जब हम इस जनरल गाइडलाइन को इंप्लीमेंट कर देते हैं एज अ कंपल्शन, दिस बिकम्स अ रूल. एंड देन जब हम रूल को वायलेट करने वालों को पनिशमेंट के साथ अटैच करते हैं, दैट बिकम्स अ रेगुलेशन. तो फर्स्ट कम्स पॉलिसी, दैट टर्न्स इनटू रूल, एंड रूल टर्न्स इनटू द रेगुलेशन. मैं रिपीट कर रहा हूं एग्जांपल के साथ. एक साल में हम 24 छुट्टियां कर सकते हैं. ये है लीव पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इन 24 छुट्टियों को आप 10 से ज्यादा एक साथ नहीं कर सकते, और एक महीने में 2 से ज्यादा नहीं कर सकते. इट इज द रूल. अब जो 2 से ज्यादा करेगा एक महीने में,
उसकी उतने दिन की तनख्वाह कट जाएगी. That is what known as the regulation. So policy is a guideline. Rule is the implementation of the guideline on the individuals, and then if somebody violates it, he is subjected for the punishment that turns into the regulation. So policy rule और rule पे regulation में convert होता है. It is a simple definition या एक simple सी चीज है ताकि आपको समझ आ जाए इनमें फर्क क्या है. So now group of individuals who work in a specific structure of the rules, policies and regulations for a common purpose. What is the purpose of the organization? The purpose of the organization is known as mission. It is known as the mission. So now when we talk about the mission, what mission stands for? What is mission? Mission is known as the reason of existence of any organization. Reason of existence of any organization. It is what known as a mission. Existence की जो reason है वो कहलाती है आपका मिशन. सो मैं एक एक चीज को एक एक स्टेप में आगे लेके जा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो और आप लोग एक एक स्टेप में अंडरस्टैंड कर लें. ओके, सो नाउ फॉर अ common purpose is known as a mission. So now what is mission? Mission is the reason of existence of any organization. So now come on, some examples of the mission. Examples are, for instance, जैसे कि such as example number one, if we talk about a company known as the Toyota, they work for the reliability. They work on the reliability. This stands for reliability. If we talk about another company, that name is the company is the Mercedes. If we talk about the Mercedes works for the safety. If we talk about the Honda company, if we talk about the Honda stands for speed. So in this way, every company has designed one core of it. वो क्यों exist कर रहे हैं, उनकी जो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस है वो इनका मिशन कहलाता. सो हमने क्या सीखा? What is organization? Organization of a group of individuals who work in a specific structure of rules, regulations, and policies, and the rules, regulations, and policies for a common purpose. What's the common purpose? Common purpose is mission. What is mission? Mission is the reason of existence. What is the reason of existence that I've given you in front of you, and that is written on the screen. So now, when we talk about the organization, remember, organizations always work or operate. Organization always work or operate in a specific area, or they operate in a specific economy. They work and operate in a specific society. They work or operate in a specific country. This country, this economy, this society, this area in which organization operates, it is known as an environment. It is known as an environment. Okay, so it is known as environment. So now, one thing we have to now understand and remember. What we need to remember, this environment in which the organization operates, this environment can never be unchanged or stagnant. This environment can never be environment. देखिएगा मैं एक एक स्टेप करके आगे जा रहा हूं, थोड़ी देर के बाद एक पूरा कॉन्सेप्ट का बंच बन जाएगा. मैं एक एक स्टेप करके आगे जाता हूं और मैं एक एक स्टेप में कॉन्सेप्ट बिल्ड करता जाऊंगा. एनवायरमेंट कैन नेवर बी, एनवायरमेंट कभी भी नेवर बी स्टैटिक, ये कभी भी स्टैग्नेंट, कभी भी अनचेंज नहीं होता है. कभी भी ये ऐसा नहीं होता जिसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होती होगी. अगर हम बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ तब्दीली,
तो हम कहते हैं कभी ये होगा जिसमें वेरी लिटिल चेंज, वेरी लिटिल चेंज, वेरी लिटिल चेंज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वेरी लिटिल चेंज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम कहते हैं कभी ऐसा हो सकता है बहुत थोड़ी तब्दीली आए लेकिन बहुत अरसे के बाद आए, एक तरह का एनवायरमेंट वो हो सकता है। ओके, ओके। Number two, it can be rather little change over a period of time, over a period of time। बहुत लंबे अरसे के बाद नहीं, कुछ कुछ अरसे के बाद इसमें कोई ना कोई तब्दीली आती रहती है। नंबर थ्री, थर्ड वन, हम कहते हैं ये ऐसा भी हो सकता है, इट इज ग्रेजुअली, थोड़ी स्पीड और तेज कर रहे हैं इसकी, ग्रेजुअली चेंजिंग, ग्रेजुअली चेंजिंग, बट इन अ but in a predictable manner। कहते हैं कि ज्यादा बदलता है मगर बदलने से पहले पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान आफ्टर 15 days पेट्रोल प्राइसेस चेंज होती हैं और 90% पाकिस्तानियों को पता होता है कि पेट्रोल की प्राइस कहाँ जाने वाली है, ऊपर या नीचे। हम कहते हैं प्रिडिक्टेबल मैनर में पता लगा। ओके, सो नाउ नंबर फोर, हम कहते हैं ये ऐसा भी हो सकता है कि फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, बहुत तेजी से तब्दीली आती है और आती भी इन एन अनप्रिडिक्टेबल मैनर। चलिए, हमने कहा एनवायरमेंट कभी भी अनचेंज नहीं होता, इसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली होती है। पहली तब्दीली हमने लिखी कि एनवायरमेंट ऐसा हो सकता है जिसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आए एक लंबे अरसे के बाद। ये ऐसा भी हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली आए लेकिन लगातार आती रहे। कभी ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्यादा तब्दीली आए लेकिन पता ना लगे, बल्कि रात बहुत ज्यादा तब्दीली आए और पता लग जाए कि क्या होने वाला है, पर बहुत तेजी से तब्दीली आए और पता भी ना लगे कि क्या होने वाला है। तो चार तरह की तब्दीलियां हो सकती हैं फिर एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, एक बहुत थोड़ी बहुत अरसे के बाद, एक थोड़ी मगर अक्सर, एक ज्यादा मगर पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, एक ज्यादा मगर पता भी नहीं लगता। तो अगर तब्दीली बहुत थोड़ी हो, अगर तब्दीली बहुत थोड़ी और वो भी बड़े अरसे के बाद, तो हम कहते हैं दिस इन्वायरमेंट इज नोन एज अ स्टैटिक इन्वायरमेंट। इट इज नोन एज स्टैटिक एनवायरमेंट। इट इज नोन एज स्टैटिक एनवायरमेंट। सो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा दैट इन्वायरमेंट जिसके अंदर तब्दीली आए बहुत थोड़ी और बहुत लंबे अरसे के बाद, उसको कहते हैं स्टैटिक इन्वायरमेंट। नंबर टू, जिसमें बहुत थोड़ी तब्दीली आए मगर छोटे अरसे के बाद आती रहे, इस इन्वायरमेंट को एक्सपर्ट्स नाम देते हैं सिंपल इन्वायरमेंट। इट इज नोन एज सिंपल इन्वायरमेंट। द थर्ड इन्वायरमेंट जिसको हमने कहा था, हमने थर्ड इन्वायरमेंट जिसको हमने ये नाम दिया था दैट ये ग्रेजुअली चेंज होता है मगर एक प्रिडिक्टेबल मैनर में, एक्सपर्ट्स कहते हैं इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, complex environment। एंड नंबर फोर, अक्सर बदले मगर पता भी न लगे कि हुआ क्या है, दिस नंबर फोर इन्वायरमेंट इज नोन एज, दिस इन्वायरमेंट इज नोन एज अ डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक इन्वायरमेंट। सुनो, अब हमने क्या सीखा? हमने तीन चीजों को सीखा, चार चीजों को सीखा। पहली चीज जो हमने सीखी, व्हाट इज दैट, एनवायरमेंट क्या है। मुइज आई एम कमिंग टू, मैं आ रहा हूँ क्या। हमने क्या सीखा? हमने सीखा अभी तक कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे लोग काम करते हैं, और फिर हमने अभी ये सीखा कि एनवायरमेंट क्या है। एनवायरमेंट वो इकोनॉमी, सोसाइटी, कंट्री है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है। ये कभी भी अनचेंज नहीं रहता। ये स्टैटिक भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी एंड डायनामिक भी। अब मैं नेम से पुकार रहा हूँ, अब मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा। व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? बिकॉज डिटेल मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूं। आई फर्स्ट एक्सप्लेन द डिटेल एंड देन आई नेम द थिंग, ताकि आपको याद रहे। So now, when we have decided that environment have four types. Number one, static, simple, complex, and dynamic.
हमने जब इस बात का फैसला कर लिया है तो अब अगली बात जिसको समझने की जरूरत है, दैट इज व्हाट, व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस, व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस, जब एनवायरनमेंट चेंज करता, व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस, याद रखिएगा, it produces it produces some impacts, it produces some impacts। जब इन्वायरमेंट बदलता है ना तो ये क्रश करता है चीजों, इसकी इस क्रशिंग ऑफ थिंग्स के अंदर से कुछ इम्पैक्ट्स पैदा हो। ये इम्पैक्ट्स जो है कभी कभी पॉजिटिव होते हैं और कभी कभी ये नेगेटिव होते हैं। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं दैट अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये इम्पैक्ट जो आया ये नेगेटिव होगा। अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम कर देती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये इन्वायरमेंट बदलता है तो इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है। ये इम्पैक्ट जो आपका इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर रहा होता है, ये इम्पैक्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर ये इम्पैक्ट पॉजिटिव हो ना बच्चों, और ये अच्छा असर डालें किसी ऑर्गेनाइजेशन पर, तो इनको अंग्रेजी में कहा जाता है, बिजनेस की जुबान में, अपॉर्चुनिटीज। तो ये इम्पैक्ट अपॉर्चुनिटीज भी जी। हैं। और अगर ये इम्पैक्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर ये इम्पैक्ट नेगेटिव हो तो हम कारोबारी जुबान में इनको कहते हैं दीज आर द थ्रेट्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन एक एनवायरनमेंट में काम कर रही है, तो वर्ड चेंज कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट्स कभी भी अनचेंज नहीं, कीप्स ऑन चेंजिंग। व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस इट प्रोड्यूसेस सर्टेन इंपैक्ट्स। पहले कह रहा था विच कैन बी पॉजिटिव विच कैन बी नेगेटिव, अब आप एक स्टेप बड़े हो गए। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट प्रोड्यूसेस द इम्पैक्ट एंड दीज इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव नोन एज एन अपॉर्चुनिटी। एनवायरनमेंट कैन प्रोड्यूस द इम्पैक्ट विच कैन बी द अपॉर्चुनिटीज एंड विच कैन बी द थ्रेट्स। when these are the opportunities when these are the opportunities, these opportunities are tried by an organization to be seized, to be seized, to be seized। एक ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि इस अपॉर्चुनिटी को सीज कर ले। सीज मींस इसको जाने ना दे हाथ से। And when it is a threat, organizations या organization, it tries, organization tried by the organization to nullify। nullify का मतलब था अवॉइड करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि environment keeps on changing, produces opportunities and threats, and the organizations try to seize the opportunities and organizations try to nullify the threats। एंड जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज को सीज और नलिफाई करने की, थ्रेट्स को, फॉर दिस पर्पस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दिस पर्पस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दिस पर्पस कि वो सीज करे अपॉर्चुनिटीज को और नलिफाई करे थ्रेट्स को, इस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन organizations need the weapon, organization need the weapons, उसको हथियार चाहिए होते हैं। What these weapons are known as, number one, these strengths। These weapons are known as the strengths। So now if these are the weapons, if the strengths are the weapons, if these strengths are the weapons, तो then what the strengths would be known for an organization। स्ट्रेंथ है वो वेपन जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटी को सीज करेगी या थ्रेट को नलिफाई करेगी। अगर ऐसा है तो फिर स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज नोन एज अ सोर्स ऑफ सक्सेस। नंबर टू, organization need weapons, organization needs weapons। Number one is the building of strengths, building strengths।
building strengths is the first weapon. And the second weapon is rectification of weaknesses. Second weapon होगा rectification of the weaknesses. अगर rectification of weaknesses required है, strength और उसको weaknesses required है, rectification required है, opportunities को seize करने के लिए और threats को nullify करने के लिए, तो फिर weakness क्या होगी? This will turn into a source of failure. So what I mean to say, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ कि ये इन्वायरमेंट जब बदलता है तो इम्पैक्ट निकालता है. ये इम्पैक्ट अपॉर्चुनिटीज भी हो सकते हैं और थ्रेट पे. अपॉर्चुनिटीज को सीज किया जाता है और थ्रेट्स को नलीफाई करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस. मगर इनको सीज करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को नलीफाई करने के लिए जो वेपन्स चाहिए, वो पहला वेपन है बिल्डिंग स्ट्रेंथ और दूसरा वेपन है रेक्टिफिकेशन ऑफ द वीकनेस. अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इट इज अ सोर्स ऑफ सक्सेस, और अगर हम कभी वीकनेस की बात करें तो दिस टर्न्स इनटू द सोर्स ऑफ फेलियर. अगर इतनी बात हमें समझ आ गई है जो मैंने लिखी है, अगर इतनी बात हमें समझ आ गई है, तो अब मैं इसका डॉक्यूमेंट बनाने जा रहा हूं या मैं इसका एक राइटअप बनाने जा रहा हूं. as organizations work in a changing environment, it needs to consistently identify any upcoming strength, identify any upcoming opportunity to seize, and any upcoming threat to nullify. So now, for the purpose, business managers keep on scanning the environment, and the same scanning is known as environmental analysis. अब मैं इसको रिवर्स पढ़ रहा हूँ. जब मैं लिख रहा होता हूँ तो वो डेफिनेशन है, रिवर्स चलता हूँ तो एक्सप्लेनेशन. देखिएगा जरा. What is environmental analysis? Environmental analysis is a scanning of the environment by a business manager to identify any upcoming opportunity or a threat, opportunity to seize and threat to nullify. So it is what known as the environmental analysis. The environmental analysis is a process in which a business manager or business managers, they try to identify the any upcoming opportunity or a threat, opportunity to seize and threat to nullify by scanning the environment or the area in which the organization is operating. If there is any question up till now, I would be happy to answer, and then I'm proceeding further. So now I'm proceeding ahead now, and I'm working on the next concept, and the next concept is again related to the environment. हमने अभी बात की that this environment keeps on changing. इतनी types हैं, बदलता है तो क्या निकालता है और कैसे उसको कैसे करते हैं, और environmental scanning के हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अभी के लेक्चर में. हम इस कदम आगे जाते हैं. जब हम बात करते हैं environment की, जिसको एक बिजनेस मैनेजर स्कैन कर रहा होता है, तो दिस environment is made up of numerous factors. ये बहुत से factors से बना होता है. These numerous factors are known as, number one, political factor, number two,
economic factor. Number 3, social factor. Number 4 is technological factor. Number 5, ecological factor. Number 6, it is known as legal factor. It is also known as competitive factor. It is also known as demographic factor. It is also known as cultural factor. It is also known as demographic cultural factor. मैं इनको बढ़ा के 20 पे लेके जा सकता हूँ, मगर a few things are not in your syllabus, so we should not discuss that. So when I talk about the course of SBO, I should only stick to the social factor, and this social will cover the culture, this social will cover the demography as well. So I should eliminate 2 out of these, and these are what? Demographic and the cultural factors. So now proceed further. So now, when I proceed further, what I'm saying that the environment is made up of different environmental factors, which are political, economic, social, technological, ecological, legal, and the competitive factors. But the competitive factor, we can use the word factors, even we can use the word factor. Okay. So now, when we talk about these all factors, that means वो business manager जो environment को लगातार scan कर रहा था, और हमने उस activity को नाम दिया था economic factor, या उसको हमने नाम दिया था environmental scanning का या environmental analysis का. मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, अगर हमने environment को scan करने के को नाम दिया था environment या environmental analysis का, तो वही word अब यहाँ लेके आता हूँ. अगर एक environment बना हुआ है different factors से, which are known as political, economic, social, technological, ecological, legal and the competitive factors, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन सब को स्कैन करना ही तो environment scanning था ना. तो अगर हम इन factors को कोई consolidated नाम दे दें, तो इनको हम कंसोलिडेटेड नाम दे सकते हैं. दैट इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ पेस्टल फैक्टर्स.